Hello my dear students, welcome back in second digital classes, and today we are going to discuss about how to create the box plot by using the pyplot. So डेटा विजुलाइजेशंस का ये वीडियो नंबर 17 है। अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं बॉक्स प्लॉट के बारे में कि बॉक्स प्लॉट बनाते कैसे हैं और इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो कम एंड लेट्स सी। फर्स्ट we are going to understand what is the box plot, and further we are going to learn how to create the box plot. So first we have to understand what is the box plot. Actually box plot, which is also known as the whisker plot, it is also called whisker plot, and it will display a summary of a set of data. Means it's a used to display the summary, and normally it is called 5-point summary. It is called a plot, a box plot with showing the 5-point summary, and that's why it is known as the whisker plot. So what it will show? It will show the minimum value, that is the lowest score. It will show the first quartile, that is the lower quartile. Means part, the whole informations are divided into the first 5 part. So first part is known as the lowest score, second part is known as the first quartile, and third one is the median, बीच का वैल्यू. ओके, एंड नेक्स्ट इज द थर्ड क्वार्टाइल, दैट इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल बिकॉज दिस इज द लोअर है, दिस इज द अपर, एंड द लास्ट वन इज द मैक्सिमम. इट्स लुक्स लाइक दिस वे कि दिस इज द बॉक्स प्लॉट. सपोज दिस इज द बॉक्स प्लॉट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड हाईएस्ट स्कोर. दिस इज द second highest, so you can show this is the second highest, or you can show this is the third quartile here, so it is quartile third. This is the median value, it is the mid value of the given data, and this is the first quartile. You can say it's a lower quartile also, and this is the lowest score. So horizontally or vertically you can see it in this way. It's showing that. Normally we can draw in a box plot, we draw a box plot from the first quartile to third quartile. What happened, this box you are seeing here, this belongs to first quartile to third quartile. एक quartile 1 से quartile 3 के बीच में ये बॉक्स बना के आपको देगा जो फील्ड होगा, और इसके साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होता है जो इस बॉक्स के अंदर जो मीडियन पॉइंट को रेफर करता है. और जो ये विस्कर है ये गो फ्रॉम इस क्वार्टाइल टू द मिनिमम और मैक्सिमम. ये जो लाइन आपको दिख रहा है, दिस लाइन इज known as a whisker, and that's why it is called whisker plot. ठीक है, तो ये whisker जो है ये यहाँ से बॉक्स के मतलब क्वार्टाइल थर्ड से और क्वार्टाइल 1 से तो मिनिमम की ओर चला जाएगा, लोएस्ट की ओर, एंड क्वार्टाइल थर्ड से हाईएस्ट की ओर मूव कर जाता है. So now how we can do this? If you want to plot a box plot, then what we have to do here? क्या करना होगा हमें? तो box plot is show the range and the middle half of the rank data, that is numerical data. देखो ये क्या क्या दिखाता है हमें. ये middle half of the data is represented by the box. जो डेटा का middle part है, मीन्स पूरे डेटा का मिडिल सेक्शंस को अगर देखा जाए इंक्लूडिंग मीडियन, वो एक बॉक्स के फॉर्म में दिखता है जहां पे फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल होता है और मीडियन वैल्यू बीच में होते हैं. हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आर ज्वाइंड टू द बॉक्स बाय स्ट्रेट लाइन. ये जो लोएस्ट स्कोर है और यहाँ जो हाईएस्ट स्कोर है, इसको एक लाइन के थ्रू, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज अ रियल एग्जाम्पल, एक लाइन के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया जाता है. द रीजन अबव द अपर क्वार्टाइल, मतलब इसके ऊपर और इसके बीच में, एंड बिलो द लोअर क्वार्टाइल इज कंटेंट 25% ऑफ डेटा. ऑलमोस्ट 25% जो डेटा होता है वो यहाँ पे विस्कर्स के थ्रू रेफर किया जाता है. इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल कि import matplotlib.pyplot as plt, I have imported the library here. And then I'm just taking the two data here. I'm going to use the two data to show that how the median will be calculated here. तो देखो यहाँ पे डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, और हमारा जो 45 है वो मीडियन वैल्यू है. ये मीडियन वैल्यू कैसे है? तो नॉर्मली मीडियन निकालने का जो कंसेप्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है ऑड नंबर और इवन नंबर के लिए, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितने, मतलब आप सारे वैल्यू को काउंट करो. अगर ये ऑड नंबर है तो जो सेंटर का पोजीशंस होगा, बीच में जो वैल्यू आ रहा है, जिसके पहले भी उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज दिख रहे हैं, जिसके आगे भी उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज दिख रहे हैं, उसी को हम मीडियन वैल्यू कहते हैं. लेकिन अगर डेटा आपका इवन कैटेगरी, इवन नंबर में है, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स जो आपने दिया है वो इवन है, तो उस केस में क्या होगा कि जो बीच का वैल्यू, 2 वैल्यू आपको बीच का मिलेगा, उसके लेफ्ट में उतने ही नंबर्स होंगे, उसके राइट में उतने ही नंबर्स होंगे, तो इन दोनों का आपको एवरेज निकालना होगा. मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मीडियन यहाँ पे पता चल जाएगा. लाइक दिस कि अगर हम 45 प्लस 60 को ऐड करते हैं तो ये 105 हो जाएगा, और 105 का अगर हम मीडियन निकालें तो 52.5
52.5 आ जाएगा। तो वो मीडियन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये 52 मीडियन है और यहाँ पे 45 मीडियन वैल्यू आपको दिखाया जा रहा है। अब क्योंकि मुझे मल्टीपल बॉक्स प्लॉट बनाने थे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, जो डेटा है उसको एज अ लिस्ट में कन्वर्ट करके, मतलब दोनों डेटा को लिस्ट आर्गुमेंट के तौर पे एक लिस्ट बनाया मैंने, और वो लिस्ट को एज अ आर्गुमेंट हमने बॉक्स प्लॉट को प्रोवाइड कर दिया और फिर हमने शो फंक्शन को कॉल कर लिया। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द बॉक्स प्लॉट। तो नाउ यू अंडरस्टैंड्स कि बॉक्स प्लॉट बनाना कैसे है। तो बॉक्स प्लॉट की मदद से बॉक्स प्लॉट में क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिखाया जाता है, इट्स अ 5 पॉइंट समरी डेटा, ठीक है, जिसमें जो बॉक्स होता है जो मिडिल हाफ पार्ट्स को दिखाता है बॉक्स के थ्रू, बॉक्स से एक लाइन कनेक्ट होती है जो मिनिमम की तरह और हाईएस्ट की तरफ जाती है। जो लाइन कनेक्ट होती है उसे विस्कर कहते हैं, और ऑलमोस्ट वो 25% ऑफ डेटा को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि बॉक्स प्लॉट्स के सिंटैक्स क्या होते हैं, क्या सिंटैक्स हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। एज आई टोल्ड यू कि बॉक्स प्लॉट फंक्शन इज ऑफ pyplot इज यूज्ड टू क्रिएट द बॉक्स प्लॉट चार्ट। नाउ इट्स हैविंग सिंटैक्स, और इसके सिंटैक्स में देखो सबसे पहले आता है डेटा, देन हम बात करते हैं नॉच के बारे में, देन हमें वर्टिकल आर्गुमेंट्स है, देन मीन लाइन आर्गुमेंट्स है, देन शो मीन्स है, शो बॉक्स है। तो डेटा का मतलब हो गया एरे और सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स, जैसा कि अभी आपको मैंने पीछे दिखाया था कि मैंने कुछ नंबर्स कलेक्ट किए थे लिस्ट के फॉर्म में, दैट इज माय डेटा देयर। नॉच का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स होता है। अगर आप इसे ट्रू बना देंगे तो एक बॉक्स प्लॉट जो बनेगा वो नॉच्ड बॉक्स प्लॉट बनेगा, अदरवाइज ये रेक्टेंगुलर बॉक्स प्लॉट, मतलब बाय डिफॉल्ट जो बॉक्स प्लॉट का शेप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। लेकिन अगर आपको नॉच्ड बॉक्स प्लॉट चाहिए तो यहाँ पे नॉच आर्गुमेंट को ट्रू करना होगा। वर्टिकल, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो बॉक्स प्लॉट होता है वो आपका वर्टिकल ड्रॉ होता है, यानी कि इस पीछे वाले फिगर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो बॉक्स प्लॉट बना हुआ है ये क्या है, वर्टिकल बॉक्स प्लॉट है। दिस बॉक्स प्लॉट इज द वर्टिकल हियर। अब इसी बॉक्स प्लॉट को आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से आपका वो बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट, हम ऐसा भी बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट कहेंगे। तो हाउ इट विल बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द वॉट आर्गुमेंट। यू हैव टू गिव द वैल्यू टू द वॉट, बाय डिफॉल्ट इट इज false, so that's why it's making a vertical. Okay, sorry, by default it is true and that's why it is making a vertical. If true makes the boxes vertical, और अगर आप इसको false value provide कर देंगे तो ये horizontal box plot आपको बना के देगा, box plot देगा या notched box plot देगा। मीन लाइन क्या है, बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा तो इट्स कैन रेंडर द मीन एज अ लाइन स्पेनिंग द फुल विड्थ ऑफ द बॉक्स। अभी तक क्या हो रहा था, मीन लाइन अभी आपको मैंने दिखाई नहीं है, एक्चुअली इससे पहले हमें सो मीन्स के बारे में जानना चाहिए कि व्हाट इज द सो मीन्स। अगर आपको अर्थमेटिक मीन देखना है, देखिए अभी मैंने आपको मीडियन वैल्यू बताया था। मीडियन वैल्यू का मतलब होता है कि वो डेटा जिसके लेफ्ट में भी उतनी ही नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल हैं और उसके राइट में भी उतनी नंबर ऑफ डेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ डेटा की बात करें कि कितने इंफॉर्मेशन लेफ्ट में है और कितना इंफॉर्मेशन राइट में है, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। लेकिन एक हमारा अर्थमेटिक मीन भी होता है एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज, आप उसे एवरेज भी कह सकते हैं। तो अगर आप सो मीन्स आर्गुमेंट को ट्रू कर देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो ये आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके दिखाएगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल आर्गुमेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल नंबर्स और वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो अगर इसके साथ नॉर्मली क्या होता है कि ये जब आपको दिखाएगा तो एक ट्रायंगल दिखाता है। ये नॉर्मली जब सोमीन्स आप सिर्फ रखेंगे तो इट विल शो अ ट्रायंगल देयर, और वो एक सोमीन को मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस ट्रायंगल के जगह पे एक डॉटेड लाइन आ जाए, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द mean line. I'll show you everything, then you will understand. I know that कि little bit confuses here because I am just discussing about these things. तो अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। mean line बता दिया, show box by default is true is show the box. अगर आप box नहीं चाहते हो तो make it false, then it will not show that rectangle there. So means I told you patch artist, by default it is none, and if it is true, if true then it fill the box. तो नॉर्मली ये नन है, नन का मतलब ही वो फिल द बॉक्स ही बॉक्स फिल नहीं होता है। अगर हम इसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे तो वो हमें फिल्ड बॉक्स प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हो कि फिल्ड बॉक्स नहीं आए तो इसे फॉल्स करके दीजिए या इस पर कोई आर्गुमेंट मत दीजिए।
अब क्या है, जब मल्टीपल सीक्वेंस हम प्लॉट करते हैं, नॉर्मली अगर मैं पीछे वाले फिगर को दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए आपको 1 और 2 दिखाया गया है, क्योंकि आपने 2 बॉक्स प्लॉट बनाया। अगर तीसरा बॉक्स प्लॉट भी होता, एक थर्ड डेटा भी होता, तो वो क्या करता, वहाँ पे 3 लिख देता, 4 लिख देता, 5 लिख देता। लेकिन अगर इफ़ यू वॉन्ट टू मेक सम लेवल, यू वॉन्ट टू गिव सम लेवल, मान लीजिए मैं वहाँ पे ABCD XYZ कुछ एप्पल और मैंगो, हाँ, और भुवनेश्वर और चंडीगढ़ कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, राम एंड श्याम में कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज द लेवल। सो लेवल्स ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस बीइंग प्लॉटेड, उसके लेवल को बताने के लिए हम इस लेवल्स आर्गुमेंट को यूज करते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ वी विल यूज द बॉक्स प्लॉट एंड व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट वन बाय वन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न कि हम कैसे बॉक्स प्लॉट बनाएंगे और कैसे हम उसके मीडियन वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यू हैव टू सिंपली कीप अ डेटा, आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, एंड आई जस्ट शो यू थ्रू द पाइथन प्रोग्राम ऑल्सो। So now I'm moving it here and I'm just writing here import matplotlib dot yeah, come fast lib dot pyplot. There is some problem. Okay, and I will write here as plt, and now I'm going to take the data here, and this time first I'm going to keep the data. I'm writing here data 1 and I'm just giving the data in random order, 4 1 56 7 है ना, 45 2 ओके 89 एंड काउंट कर लो डेटा कितना है, इट्स अ 7 डेटा। ठीक है, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं देता हूँ डेटा को तो व्हाट इट विल हैपन, एक्चुअली क्या होगा वहाँ पे। तो दैट्स आई वांट टू चेक इट, सो आई एम जस्ट गिविंग द डेटा 1 here and now at last I'm writing here plot.show, and I already told you if you want to show some title to the chart, so you will give the title my box plot। तो मैंने एक टाइटल भी दे दिया, प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं, एंड नाउ आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम अंडर द माय पाइथन लाइब्रेरी एंड पाइथन folder, and here is the matplot. So inside the matplot I am just writing boxplot demo. Okay, so now I'm going to execute this program. After saving our program I'm going to execute. First time it will take some time because it's trying to import, and look at this, it's a working fine. I think it's a giving the median value that is in between 0 to 20. So एक बार डेटा को देख के इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे, मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। मैं डेटा 1 को जरा सा ऐसे लिख देता हूँ, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा, फिर 7 आएगा, ओके 7 आएगा, फिर क्या आएगा 45 होगा, फिर 56 होगा, फिर 89 होगा। तो अगर इसके मीडियन वैल्यू को देखा जाए तो मीडियन वैल्यू देखो इस जगह पे है, 7 के पास है, और इससे भी मीडियन वैल्यू हमें 0 से 20 के बीच में ही दिखाया है, यानी कि नियरेस्ट टू 0 दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा 7 हो गया। 0 से जस्ट अबव देखो तो 1 वैल्यू मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 0 से जस्ट ऊपर देखा जाए तो 1 वैल्यू मिल रहा है, ये हमारा मीडियन वैल्यू 7 आ गया। हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारा क्या है 89, सो 80 के ऊपर जा रहा है। और फर्स्ट क्वार्टाइल इसने क्या रखा है, इसने 45 और 60 के 56 और 45 40 के बीच में है, तो आई होप शो इसने 56 को ही लिया होगा यहाँ पे, नहीं ये 45 के आसपास हो सकता है या 50 के आसपास हो सकता है। ठीक है, इन दिस वे इट विल वर्किंग हेयर। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं 7 के जगह पे मान लीजिए मैं 39 लिख देता हूँ या 40 लिख देता हूँ, तो अब ये जो 40 है ये हमारा क्वार्टाइल मीडियन वैल्यू हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक कि ये देखो 40 के पास आपका मीडियन वैल्यू आ गया है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ डेटा अगर मैं मान लीजिए प्रोवाइड कर देता हूँ, इसी केस की बात करता हूँ, और इसी प्रोग्राम में इफ सपोज कि आई एम गोइंग टू गिव वन मोर डेटा हेयर, 40 के साथ साथ मैं यहाँ 45 है तो इसको मैं 55 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। तो देखो 50 प्लस 40 कितना होगा 90, और 90 का हाफ करोगे तो 45 हो जाएगा। तो देखना इसका जो मीडियन वैल्यू होगा, क्योंकि अगर इस डेटा को मैं अरेंज करूँ तो ये हमारा यहाँ पे 40 कॉमा ये 50 हो जाएगा।
50 एंड कॉमा हमारे पास एक 55 भी है, तो मैंने एक 55 भी लिख दिया। तो जो बीच का वैल्यू है वो डेटा हमारे पास क्या है, दिस एंड दिस डेटा इज नोन एज द मीडियन डेटा, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी देखिए, नहीं यहाँ से मैं 7 को हटाऊंगा तो इसके लेफ्ट में भी देखिए कि उतने ही वैल्यू हैं, इसके राइट में भी उतने ही वैल्यू हैं। लेकिन ये क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेटा है यहाँ पे, तो हम 40 या 50 में से किसी एक को मीडियन नहीं रखेंगे, हम इसके सम को दोनों के ऐड को करो, इन दोनों को, और उसको एवरेज निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा हमारा 40 + 50 90 डिवाइडेड बाय 2 45। तो लेट्स बी चेक कि हमारा मीडियन वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डाला है, असेंडिंग ऑर्डर में अपनी सुविधा के लिए देखो ये 40 से ऊपर आ गया और 60 से नीचे, तो दैट इज द 45। तो ये 45 निकल के हमारा एवरेज वैल्यू आ रहा है। तो दिस वे यू कैन मेक द बॉक्स प्लॉट, मीन्स आपको बॉक्स प्लॉट बनाना मैंने बता दिया और मीडियन को शो करना बता दिया। यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू जो है, लोएस्ट स्कोर, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा 25 पे है, मीडियन 45 पे है, थर्ड क्वार्टाइल 75 पे है और मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर क्या है हमारे पास 100 है। ओके, सो नेक्स्ट इज द सो मीन्स, हाउ वी कैन शो द मीन्स। मैंने आपको बताया था कि जब आप सो मीन्स को ट्रू करोगे तो एक ट्रायंगल आ जाएगा और इससे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है और मैंने उस डेटा का क्या किया, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया, इट्स अ फॉर माई पर्पस ओनली, इट्स नॉट नेसेसरी कि वी हैव टू शो इट। तो सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय लेन ऑफ डेटा, बिकॉज डेटा जो है लिस्ट के फॉर्म में है, सो आई सिंपली कॉल द सम फंक्शन एंड नाउ आई एम डिवाइडिंग बाय यूजिंग द लेन फंक्शन, आई एम कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेटा एंड दिस डेटा सम ऑफ डेटा इज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द डेटा एंड वी विल गेट द अर्थमेटिक मीन एंड नाउ आई एम रिटन हियर शो मीन्स ट्रू। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मीडियन लाइन तो सेपरेटली दिखाया गया है और अर्थमेटिक मीन को सेपरेट दिखाया गया है। तो जो अर्थमेटिक मीन है वो 60 के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जरा सा मैं इस डेटा की बात करता हूँ और यहाँ पे सपोज करो कि मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो, मान लो मैंने दे दिया 10 20 30, सिंपल वैल्यू ले देता हूँ सो दैट अर्थमेटिक मीन हम आसानी से कैलकुलेट कर सके। अब हमारा मीडियन वैल्यू हो गया 40, ठीक है, मीडियन वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, 40 बनेगा इस डेटा के साथ। ओके, और मुझे अर्थमेटिक मीन्स भी देखना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा के एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे मैं एम दिखा देता हूँ, एम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ डेटा 1 डिवाइडेड बाय लेन ऑफ डेटा, तो हमें अर्थमेटिक मीन पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेन ऑफ डेटा 1, तो ये हो गया हमारा, अर्थमेटिक मीन भी आ जाएगा। अच्छा, और क्या करना था मुझे, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा सो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू, सो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू। तो अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे अर्थमेटिक मीन भी यहाँ पे दिखेगा। देखो अर्थमेटिक मीन क्या आया यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन 40 आया इसका। क्यों 40 आया, क्योंकि डेटा ही हमने कुछ ऐसा लिया था 20 10 30 30 40 40 40 80 80 एंड 60 जोड़ लोगे तो 140 हो जाएगा, 50 करोगे 190 हो जाएगा, 260 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 और इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास फिर से 280 आ जा रहा है, तो हमारे पास 40 ही इसका अर्थमेटिक मीन भी निकल के आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 80 कर देता हूँ, अगर मैं इसे 80 कर देता हूँ, देन यू विल सी व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन हियर। दिस टाइम द अर्थमेटिक मीन इज 41.5। तो अब देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर अर्थमेटिक मीन दिखा रहा है। लेकिन अगर इस 80 के जगह पे मैं इसको 65 पे छोड़ दूं और इधर मैं एक वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता हूं या इसकी वैल्यू को, तो मैं चाहता हूं कि अर्थमेटिक मीन नीचे आ जाए, तो नीचे तो आएगा नहीं, चलो इट्स फाइन, इट्स अ वर्किंग फाइन। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट डेटा कि अर्थमेटिक मीन कैसे हमारे ऊपर नीचे हो सकता है। तो दिस टाइम यू विल सी द अर्थमेटिक मीन इज 39, तो देखो ये इसके नीचे चला गया। तो इन दिस वे वी कैन शो द अर्थमेटिक मीन ऑल्सो। So now you understand how we will make the box plot as well as how we can show the arithmetic means. This is about the box plot showing the notch. So we can show the notch also. How we can show the notch? To show the notch box plot, we have to use the notch argument. And what we have to do, we have to simply use the notch and give it a value as a true. और जब भी आप उसको notch को true करोगे तो ध्यान रखना जो notch का concept है वो हमेशा मीडियन से जुड़ा हुआ रहता है। जो मीडियन अगर जिसके तरफ होगा नॉच्ड वो ही होगा। कई बार मीडियन बीच में आ जाते हैं तो दोनों ही साइड में नॉच दिखेगा, अदरवाइज देखो ये नॉच किस तरह से आपको दिखाई
दे रहा है, जो आर्गुमेंट का स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट डाउन हियर नॉट इक्वल टू ट्रू। तो लेट्स सी ऑन इन द प्रोग्राम कि हम नॉच को कैसे ट्रू करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे NOTCH नॉच इक्वल टू ट्रू कर देना है। बाय एवरीथिंग इट विल डिपेंड अपॉन द डेटा कि व्हाट डेटा यू आर हैविंग, अकॉर्डिंगली इट विल शो द नॉच आर्गुमेंट। तो देखो ये नॉच क्योंकि ये मीडियन के आसपास रह गया तो दोनों तरफ के बराबर इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग द नॉच ऑल साइड। ओके, तो इन दिस वे यू कैन मेक द notch box plot also. Okay, so this much is for today, and in the next video I will talk about the something more. So I hope so you like this video से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।